ریکارڈ میں رکھے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے وہ قیامت کے متعلق آج کا میرا موضوع ہے۔ جو مجھے ٹائم دیا گئے ہیں وہ ہے آدھا گھنٹہ یا 30 منٹ کے۔ میں اس سے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے قبل میں تھوڑا تحمید یہ باندھنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی تمام ضرورتیں، تمام چیزیں میسر اور موجود ہیں۔ انسان پیسوں کے بلبوتے پر وہ انسان اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنی خوبصورت دنیا کو بنانے کے باوجود اللہ ان دنیا کو فنا کرنے والے ہیں، ان کو برباد کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی اس انکار کرنے والے یعنی ان کافروں کو یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے بھی، اللہ کے نبی سے بھی سوال کیا گیا تھا، آئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کی گھڑی کب آئے گی بتائیے۔ آپ تو نصیحت کرتے ہیں، آپ کے صحاباؤں بھی نصیحت کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نبی کو، اپنے نبی کو کہتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دنیا والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، کہ میرے رب کے پاس ہے ان کا علم، یعنی دنیا کی کسی چیز کی طاقت نہیں کہ وہ قیامت کا دین کا وہ ڈیٹیلز بتا دے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے سورہ قیامت کے لیے سورہ قیامہ ہی صورت نازل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کفار، کیا ان اللہ کو نہ ماننے والے جو ہم کو نہیں مانتے ہیں، کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم ان کو ہڈیوں کو ملا نہیں سکتے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہڈیاں تو جمع کرنا بہت دور کی بات ہے۔ سنو، بلا قادرین، ہم ان کو اس پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بلا قادر انسان، آئے انسانوں میں تو قدرت رکھنے والا ہوں، میں تو اس چیز پر لیفجر اماما، کہ ہم تو اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں کہ تمہاری ان چیزوں کو جو تم گناہ کرتے چلے جاؤ ہم ان چیزوں کو بھی ریکارڈ میں رکھے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں انسانوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک ایان یوم القیامہ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ دنیا والے یہ پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی تو آپ ان سے بتا دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھ چندیا جائے گی، آنکھ کی روشنی کو سلب کر لی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت آئے گی، اس سے قبل ایسا انسان کا ہوگا جیسے ہم رات میں کچھ چیز دیکھتے ہیں تو اچانک زیادہ روشنی ہونے کی وجہ سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی، ہمارے آنکھ ان کی دیدار نہیں کر پاتے ہیں، کیا ہو گیا اچانک؟ فَإِذَا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا بصر، یہ فرماتے کہ ان کے چیزوں کو ان کی آنکھ کی روشنی کو سلب کی جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، سورج کو لپیٹ لیا جائیں گے،
यानी सूरज को भी नूर कर दिया जाएगा, उनकी रोशनी को लपेट लिया जाएगा। वजुमिया शम्स वल कमर, चांद और सूरज को दोनों को हम लपेट लेंगे, दोनों को जमा कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, चांद और सूरज को दोनों अल्लाह तबारक व तआला लपेट लिया जाएगा। फयक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन लिल मफ़र, उस दिन इंसान ये कहेंगे क्या हो गया, हम किधर चले जाएं, हमारे भागने की जगह क्या, कहाँ चले जाएं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन तुम्हारा कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, भागने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत आएगी, ये चीज पर हक अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर क़यामत को लाएंगे, लेकिन क़यामत का इल्म किसको है, अल्लाह तबारक व तआला को है। आइए, क़यामत से पहले कुछ निशानियां भी आएंगी। अल्लाह के नबी, सही मुस्लिम की रिवायतें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 10 निशानियों का जब तुम दीदार न कर लो, तुम देख ना लो, तो क़यामत ना आएगी। कुछ निशानियां ऐसे हैं कि धुआं का निकालना, पूरी दुनिया में अंधेरी छा जाएगी, इंसान देख ना सकेगा, इंसान अपने आंख से देखने का इतना भी ताकत नहीं रखते हैं, क्योंकि धुआं निकल आएंगे अल्लाह के हुक्म से। वह दाब्बतिल उरूज, जमीन से एक जानवर निकल आएंगे। और भी फरमाए हैं कि यजूज मजूज का निकलना होगा, वो भी दुनिया में आएंगे। उससे कबल यह भी होगा कि याजूज और माजूज जो दुनिया में फसादात फैलाएंगे, उसको खत्म करने के लिए, उसके खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया में आएंगे। और ये भी बताया गया है, उनका एक निशानियां ये भी है कि 3 ऐसे जगहों को धसा दिया जाएगा। मशरिक को धसा दिया जाएगा, मगरिब को एक जानिब धसा दिया जाएगा, पूरब के एक जानिब धसा दिया जाएगा, और जजीरतुल अरब के एक ऐसा जगह होगा, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला उसको जमीन को भी धसा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये निशाना आएंगे, और एक निशाना ऐसा भी होंगे तुम्हारे सामने, क़यामत आने से पहले तुम देखोगे कि पूरब की तरफ से एक आग निकल आएगी, समंदर की तरफ से एक आग निकल आएगी, जो इंसान को हाँकते हुए मशरिक की तरफ ले जाएंगे, वो मक्काबे की तरफ ले जाएंगे, पश्चिम की तरफ हाँकते हुए लेके जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, आइए मैं उसके तर्जुमा करता हूँ। सूरह हज की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नास इत्तकू, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। आए मोमिनो, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, अल्लाह से डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला जलजला, एक अजीम दिन लाएंगे जो तुमने कभी ना देखा। और वो दिन जो आएंगे अल्लाह तबारक व तआला, वो बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत ही खतरनाक दिन होगा, हवलनाकिया दिन होंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन तुम देखोगे, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा रज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चों को छोड़ देगी, और माँ भी चलना शुरू कर देगी, दौड़ने लगेगी, माँ भी उस बच्चे की ख्याल ना रख पाएगी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और हवालनाकियत वाले दिन होंगे। मेरे प्यारे साथियों, वतज़ाउ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्लहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिस्सुकारा वलाकिन्नल्लाह अज़ाबस शदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये बच्चे भी छोड़ना बड़ी बात नहीं है, इससे कठिन भी तुम देखोगे कि इंसान ये करेगा, माँ ऐसी करेगी जो गर्भवती रहेंगी, जो प्रेग्नेंट होगी, जो हामिला होगी, वो अपने बच्चों को साकित कर देगी, उनके बच्चे हमल से गिर जाएंगे दौड़ते दौड़ते, लेकिन पता ना चलेगा कि क़यामत का दिन इतना अजीम दिन होंगे, उनको पता ना चल पाएंगे कि ये कौन से दिन है, क्या मेरे पेट में बच्चा थे या नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत खतरनाक दिन होगा, बहुत ही हवालनाक दिन होंगे। और आइए, आदमी उस दिन देखेगा और कहेगा,
शायद कि लग रहा है कि सब नशे की हालत में, सब नशे में है, नशे में मदहूस है। नहीं नहीं, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, वो लोग नशे की हालत में नहीं रहेंगे बल्कि अल्लाह की बड़ी अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह की शदीद अज़ाब की वजह से ये लोग घबराए हुए होंगे, पागलों के जैसे घूमे हुए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्या क़यामत का दिन बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही हौलनाक या होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इहशरुन्नास यौमल क़ियामा, क़यामत जो आएंगे तो क़यामत के वो दिन कठिन होंगे कि इंसान नंगे बदन नंगे पैर दौड़ेंगे। इस पर आयशा फरमाती है, आयशा ने अल्लाह के नबी से सवाल कर बैठती है, आय अल्लाह के नबी, क्या अर्निसाओ और रजूल जमिया, आय अल्लाह के नबी, क्या उस दिन मर्द और औरत दोनों एक जगह रहेंगे? कहा आयशा दोनों एक जगह रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। अल्लाह के नबी के बाद जब ये बात सुनी तो आयशा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, उस दिन तो मारे शर्म के मर जाएंगी, औरतें मारे शर्म की मर जाएगी, जो जबकि दोनों नंगे की हालत में रहेगी। अल्लाह के नबी ने इसी चीज को डिटेल्स के साथ बता रहे हैं, आयशा इतना भी समय ना रहेगा, इतने भी वक्त उनके पास नहीं रहेंगे कि वो एक दूसरे की तरफ देखे। मेरे प्यारे साथियों, वो बहुत अजीम दिन होंगे, बहुत ही खतरनाक दिन होगा, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आज हम सुन रहे हैं जमीन को झंझोर दी जाएगी, जमीन में जलजला कपकपी तारीख हो जाएगी, आसमान फूट जाएंगे, सूरज जो है सूरज की गर्मी को लपेट ली जाएगी, सूरज की रोशनी को लपेट ली जाएगी। हम इनको मजाक समझ के हुए हैं, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा अल-वाक़िया के अंदर इससे कसम खाने है कि मैंने कसम खाई है कि जरूर मैं क़यामत लाऊंगा। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख़्तलिफ़ून, जब वो लोग आपस में मशवरा क्या करते थे कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कैसी होगी, वो दिन कैसे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि क़यामत जरूर आएंगे और यकीनन तुम देख लोगे, तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, कब आएगा? फैज़ा बरिक़ल बसर व खसफल क़मर व जुमियत शम्स वल क़मर, जब ये आँख चुनिया जाएगी, जब सूरज की रोशनी को लपेट लिया जाएगी, पूरी दुनिया में अंधेरी छा जाएगी, तो क़यामत आ जाएगी। और सुनो, आज तुमको तौबा करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं तुम्हारे पास है। नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए तो सिर्फ बूढ़ा नमाज पढ़े, सिर्फ हाजी नमाज पढ़े, सिर्फ उमर दराज नमाज पढ़े, मौलवी नमाज पढ़े, अभी जवानी का जोश है। सुनो, जिस दिन क़यामत कायम होंगे उस दिन सुबह जब उठोगे तो देखोगे सूरज पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से दोनों हो गया है। और समझ लेना, और गुनाह का दरवाजा बंद कर दिया गया है। अल्लाह ने मग़फ़िरत के दरवाजा बंद कर दिए, रहम करम के दरवाजा बंद कर दिए। अब किसी पर मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। अब जाओ, जितने सारे अमल किए हो उस अमल को लेकर अल्लाह के यहाँ जमा हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन क्या होगा? आज इतने मील, आज 60 लाख कुछ मील ऊपर हमारे ऊपर सूरज को मुअल्लक कर दिया गया है। हम इनकी तपीस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इंसान परेशान हाल में है। उस दिन 1 मील की दूरी पर होगी। और इसको हदीस की नजरिया से देखा जाए, इनको अगर टेक्नोलॉजी के नजरिया से देखा जाए तो 1 मील 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर होते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी के पर होते हैं। ये सूरज जब हमारे ऊपर आएंगे, इनकी गर्मी और इनकी तपीस जब हमें बर्दाश्त नहीं होंगे तो उस दिन हम क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं, उस दिन ऐसा होगा कि इंसान अपने गुनाहों के बल, कोई घुटनों के बल, कोई अपने घुटनों के बल, कोई अपने इस कमर के ऊपर, कोई सीने तक, कोई अपने थोड़ी तक, अपने पसीने के बल वो डूबेंगे, उसी में तैरता रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला बहुत अजीम दिन की बात कही है और बहुत ही खतरनाक दिन है। आइए मैं आपको बता दूं, क़यामत कायम हो चुके हैं। इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, हम सब मर जाएंगे, रूह जमीन पर पटक जाएंगे। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के नाफरमान बंदो, अल्लाह के बंदे सुनो, अल्लाह के बंदे बंदियों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला जो चीज फरमाते हैं,
اور یہ فرماتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگا، حشر جو ہوگا، اس سے قبل تمہارا کیا کیا انجام ہوگا تم دیکھو گے، تم اس چیز کو دیکھو گے، اور وہ چیز یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس دن دیکھے گا، انسان دیکھیں گے کہ اس دن کیا ہوگا، زمین کو زلزلہ آئے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو کب کپی آئے گی، زمین اپنا ٹھکانہ اپنی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، زمین اپنا پوزیشن میں نہیں۔ آپ جو بیٹھے ہیں آج صحیح ہے، لیکن جس دن اللہ کا وارڈر ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، اس دن یہ زمین اپنے وجود پر نہیں قائم رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن انسان کہیں گے وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہیں گے زمین تجھے کیا ہو گئی، اے زمین جس کے لیے میں نے بھائی بھائی میں ہانا ہانی، کاٹا کاٹی، مارا ماری کر رہے تھے، بھائی ایک دوسرے کی جان کے خون کے پیاسے تھے، اے انسان یہ کہیں گے اے زمین تجھے کیا ہو گئی، آج تو اتنا کیوں ہل رہی ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها، زمین اس دن اپنی تمام کی تمام چیزیں باہر نکل دے گی، وہ مردے چیز ہو یا اس سے کوئی بھی مراد ہو یا ہماری چھپے وہ گناہ ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں وہ زمین اس دن کہہ دے گی۔ اور یہ کہیں گے کیسے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، اللہ اس دن کو پاور دیں گے، اے زمین تو کہہ دے یہ آدمی گناہ کیا تھا یا نہیں۔ زمین اس دن کہیں گے اللہ رات کی تنہائی پر، رات کے اکیلے پر، رات کے سناٹے میں انہوں نے میری زمین کے اوپر، اللہ میرے سینے کے اوپر انہوں نے گناہ کا کام انجام دیا تھا، دوسرے لڑکیوں کو چھیڑا تھا، دوسرے ساتھ گفتگو کی تھی، یا اللہ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اوپر دلائل ثابت ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام کی تمام چیزیں اس پر موجود ہوں گی۔ آئیے قیامت قائم ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اس سے قبل ہمارے نام اعمال ہم سے دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کتنی خطرناک چیز ہے اور جنت کتنی آسان اور خوبصورت محل ہے اور کتنا اچھا چیز ہے۔ جب ہم نے قرآن کے تلاوت کرتے ہیں، جب اس میں یہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ فیہا خالدون، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کو ہمیشگی کے لیے ہمیشگی دی جاتی ہے تو آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنت میں ہمیشگی کے لیے اس جنتیوں والوں کو دیا جاتا ہے تو دل بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں حساب و کتاب ہوں گے، آخرت میں بھی حساب و کتاب کیا جائے گا، ہمارے نام اعمال ہم سے دیا جائے گا۔ اور نوجوانوں سنو، رات کے سناٹوں میں گناہ کرنے والوں، رجائی میں چھپ کر گناہ کرنے والوں، اینڈرائیڈ کی موبائل پر اپنے انگلیوں کو ٹچ کرنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تمہیں یہ بات یقین نہیں ہے، قرآن اٹھاؤ، قرآن کے پارے اٹھاؤ، عالموں سے پوچھ لو یا موبائلوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آیتیں بھی بلا لو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم دنیا میں کوئی بھی گناہ کرتے ہو، اللہ ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مسلط کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں، جو رات کے سناٹے میں تم گناہ کیے ہو نا، یہ اللہ کے سامنے فَإِنَّمَا اللہ تبارک و تعالی جب ان چیز کو تمہارے سامنے پیش کرے گا تو تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ کیسے انکار کرو گے؟ اللہ رب العالمین جس دن انسان کو نامہ اعمال دے دے گا، ان کی کتاب ان کو دے دی جائے گی، ان کو رجسٹر ان کو دے دیا جائے گا۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، سورہ کہف کی آیت ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم قیامت کے دن ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، ان کے رجسٹر ان کو ہاتھ میں دے دیں گے، ان کی کتاب ان کو دے دی جائے گی،
इंसान अपनी किताब को खोलेंगे, वउज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। उस दिन तुम मुश्फिक लोगों को देखोगे, फाजिर लोगों को देखोगे, गुनहगारों को देखोगे, वो अपने चेहरे सहमाए हुए होंगे, वो बहुत घबराए हुए होंगे, अपनी किताब को लेंगे, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, या अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नाम आमाल है अल्लाह, जो मैंने ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। अल्लाह जो मैंने रात के सन्नाटे में जो गुनाह किया था, अल्लाह बाप से छिपके किया था, अल्लाह अपने समाज के लोगों से छिपके किया था, अल्लाह मैं अपनी कौम और मुआशरे से छिपके किया था, रात के सन्नाटे में रजाई के अंदर मैंने जो गुनाह का काम किया था, अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम है आमाल है अल्लाह, ये तमाम की तमाम चीजें इस पर मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन इनकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामा अमाल में एक एक चीज को रिकॉर्ड करके रखा है। आए नौजवानों, मैं तुमसे खिताब करके कह रहा हूँ, मैं भी एक नौजवान हूँ, नौजवानी को अपने नौजवानी के दौर में बहुत ही अपने इफ़्फ़त व अज़मत को बचाना बहुत ही कठिनाई का सामना पड़ता है। आए शराब के अड्डे में रहने वालों, आजान जब हो तो शराब के नशों में अड्डों में रहने वालों, मोबाइल पर रात रात भर गाने बजाने वालों, मोबाइल से लड़कियों से गलत इस्तेमाल करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं अल्लाह तुम्हारा मुआखिदा कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह तुम्हारे एक एक बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारे एक एक चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तुम्हारे जो बातें निकल रही हैं अल्लाह उनको रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का पकड़ से नहीं बच सकते हो। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब सबका हो जाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका किताब, जिसका नाम है अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो बड़ी ही खुशनसीब होगा, उनका हिसाब व किताब बहुत आसानी से लिए जाएंगे। लेकिन जिसके नाम अमाल, जिनकी किताब, जिनके रजिस्टर उनके पीछे हाथ से, उनके पीठ के पीछे दिया जाएगा, और उनके पीठ के पीछे दिए जाएंगे, उस दिन अपने नाम अमाल को देखेंगे, हाय हाय लादरी, मैंने क्या क्या था, अगर दुनिया में मैंने आलिमों की बात मानी होती, मैंने कुरान और हदीस के सुन्नत के रोशनी पर चले होते, तो आज ये नौबत ना देखे होते। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसी चीज को कहता हूँ, क़यामत जरूर आएंगी और यकीनन आएगी, इससे कबल तुम अपनी तैयारियां कर लो। नौजवानों, मैं खास तौर पर तुमसे कह रहा हूँ, अपनी नौजवानियों में मस्तियों में मगन ना रहो, बल्कि अपनी नौजवानी को सही जगह में इस्तेमाल क्या करो। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम को दोनों जगह रखा है, लेकिन जब हिसाब व किताब होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को जहन्नम में भेजेंगे और जन्नत में जन्नत वालों को भेजेंगे। जन्नती ये पूछेंगे, मा सलककुम फिस सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। आए जहन्नमियों, आए मेरे भाइयों, बताओ तुम किस जुर्म पर जहन्नम की वारिद बन गए, जहन्नम में चले गए। कहेगा अल्लाह, आए लोगों, मैं दुनिया में न नमाज पढ़ रहे थे, न लोगों को खाना खिला रहे थे, न मिस्किनों को खाना खिला रहे थे, मैं दोनों चीजों की वजह से मैं जहन्नम का मुस्तहिक बन गया। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में जब जहन्नम को डाला जाएगा, उस दिन अल्लाह के नजरे आसमान, उस दिन इंसान अल्लाह के रहमत के नीचे देखे होंगे। अल्लाह कहेगा, नहीं आए मेरे बंदे, नहीं, कोई तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नबा के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन मेरी हुकूमत चलेगी, मेरे सल्तनत होगी, मेरी बादशाही होगी। उस दिन न किसी का हुकूमत चलेगी, लेकिन वादिन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, रहमान जिसको इजाजत देंगे वो रहमान के सामने बात कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, यही जहन्नम में क्या खुराक होगा, हमारा हिसाब, हम लोगों का हिसाब व किताब हो जाने के बाद हमारा ठिकाना कहाँ होगा, जहन्नम होगा। क्या जहन्नम अच्छी चीज है? नहीं नहीं नहीं, जहन्नम को कहीं हुतामा नाम से बुलाया गया है, कहीं नार के नाम से बुलाया गया है, कहीं अलकारिया के, कहीं हुतामा के नाम से बुलाया गया है, कहीं और नाम से बुलाया गया है, एक एक नाम से जहन्नम को बुलाया गया है। मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या तुम्हें मालूम कि हुतामा क्या है? बहुत ही खतरनाक आगे। मेरे प्यारे साथियों, जब जहन्नम को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम उससे फरियाद करेंगे, आए जहन्नम की दारोगे, मुझे अपने बच्चे ले लो, मेरी औलाद ले लो, मेरे बीबी बाल बच्चे ले लो। जिन बीबी के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने कमाया था, रोजगार किया था, हलाल व हराम की तमीज मैंने ना की थी, आज उनके लिए मैं जहन्नम जा रहा हूँ। आए जहन्नम की फरिश्ते, मेरे बच्चों को ले लो, मेरे औलाद के ले लो, लेकिन मुझे जहन्नम से बचा लो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, और एक बात कह दूं, अभी दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर चले जाओ, किसी भी दुनिया पर चले जाइए आप, रिश्वत से ज्यादा काम होते हैं, इंसाफ कम होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप कहीं फंस गए, 10-100 रुपया दे दीजिए, उससे बच जाइए। ये दुनिया का ये कारखाना है और दुनिया का निज़ाम और दस्तूर चल रहा है। लेकिन कभी ये समझिए कि रिश्वत का कभी लिखित नहीं होता है, उनका कभी लिखित और साइन मोहर नहीं किया जाता है, उनका स्टैम्प पेपर में साइन नहीं किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब उनको जहन्नम में भेजा जाएगा, वो भी कहेगा कि मुझे बचा लिया जाए, मेरे बच्चे ले लिए जाए, मेरी माँ अगर अन्य मालिया सुल्तानिया हलक अन्य सुल्तानिया, मेरे माल, मेरी दौलत में तमाम चीज़ें बर्बाद हो गई, मेरी सल्तनत आज कोई काम का ना रहा। मेरे प्यारे साथियों, वक्त की किल्लत है, बस यही बात मैं अपने बता के मैं अपने जगा लूंगा। ये कहना चाहता हूं, जब उनको डाला जाएगा कितना खतरनाक होगा, सुन लीजिए। अलैहा मलाइकातुन गिलाद, अलैहा मलाइकातुन गिलादुन शिदाद ला यासुनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। उस दिन तुम उससे देखोगे, उन दरोगे के देखोगे, वो बहुत ही सख्त होंगे, बहुत ही कठोर मिजाज का होगा, बहुत ही सख्त मिजाज का होगा। अलैहा मलाइकातुन गिलाद ला यासुनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। उस दिन तुम देखोगे, तुम उससे जब रिश्वत दोगे, अपने बच्चे को हवाला करोगे, अपनी औलाद को हवाला करोगे, वो तुमसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को फरिश्ता है और वो ही काम करेंगे। ला यासुनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। अल्लाह जो काम उनको करने के लिए कहा जाएगा, वही काम उससे किया जाएगा, वही काम वो करेगा, वही काम वो अंजाम देगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं हाथ जोड़ता हूँ, शरीयत अगर हाथ जोड़ने का इजाजत देती तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। जहन्नम एक बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी के सामने में जब जहन्नम का तज़किरा किया जाता, अल्लाह के नबी अपने मुबारक चेहरे को हटा लेते, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमर। आए लोगों, जहन्नम के आग से बच जाओ, चाहे खजूर के टुकड़ा तुम्हारे घर में क्यों ना हो, उसको सदका करके बच जाओ। अगर खजूर के टुकड़ा तुम्हारे घर में नहीं है तो फलम यजिद फबि कलिमातिन तय्यबा, तो तुम एक अच्छी कलिमात ही कह के तुम उस जहन्नम के आग से बच जाओ। मेरे प्यारे साथियों, तमाम दुनिया भस्म हो जाएगी, ये दुनिया मिट जाएगी, तमाम चीजें खाक और बर्बाद हो जाएंगी। हमारा आप आए हैं, क्या हमने बता सकता है कि हमारा आबो अजदाद थे, हमारा जो परदादे थे वो अभी जिंदा हैं, कब्र चले गए हैं, वो भी क़यामत के दिन खड़े होंगे, हम सब खड़े होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अजीम और खतरनाक दिन है, उनके लिए तैयारियां कीजिए। 60 साल और 70 साल की जिंदगी को लेकर बहुत घमंड मत दिखाइए। मैंने कितनों को देखा एक्सीडेंट की हालत में मर गए, मैंने कितनों को देखा, थोड़ा ना अल्लाह को बहाना चाहिए कि पेट का दर्द हुए डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बता दिया कि मैं माफी चाहता हूं, इससे कब ला तो इसको इनका ऑपरेशन हो जाता, बच जाता। मेरे प्यारे साथियों, इतनी सारी शिकायतें हैं, मौत से क्या किसी को रिश्तेदारी है, आज उनकी बारी तो कल हमारी भी बारी है। मेरे प्यारे साथियों, कहा अब आपने हर दफन के वक्त हम आगे का क्या हम हाल जाने, लहर तक आपकी ताजीम कर दी, आगे आपके नामा अमाल जाने। नौजवानों, जिनके साथ राजे गुजर रहे हो, जिनके साथ फिल्में देख रहे हो, जिनके साथ रात भर अपने तमाम चीजों के गुलछर्रे उड़ा रहे हो, लड़कियों के साथ बात कर रहे हो, ये तुम्हारे कोई साथी नहीं है, ये दुनिया तक महदूद है। जबकि तुम देख रहे हो कोई मुकदमे में फंस जाओ, कोई केस मुकदमे में फंस जाओ, वो तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है, तो फिर वो दुनिया में तुम्हारा क्या काम आएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हाथ जोड़ता हूं कि आप उन दिन के आने से पहले, क़यामत के आने से पहले आप अपनी तैयारियां कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे बातें हैं, वरना घंटों घंटा भर बोले तो कोई इस
تقریر ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور میں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مقرر صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو الہ العالمین قیامت کے اس فتنے سے، دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان قیامت کے حوالات کو اللہ عبرتناک اور ہمارے لیے نمونہ بنا دے، اللہ ان کی تیاری اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔